हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। दीपिका को कौन सी बात लगती है सबसे ज्यादा इरिटेटिंग? अपने हस्बैंड के कौन से राइवल के साथ पार्टी करते नजर आई गौरी खान? एक बार फिर काटा कंगना ने संजय और अजय देवगन का रास्ता। कैसे किया प्रियंका ने विद्या बालन को इंस्पायर? एक वुमेन्स मैराथन में पहुंची दीपिका पादुकोण, वेयर शी रिवील्ड उन्हें किस बात से होती है इरिटेशन। आप भी जाने हमारी टॉप स्टोरी में। दीपिका को नहीं आती एक बात रास। I think lies, it's something that really annoys me. दीपिका को है झूठ से सख्त नफरत। I think lies, it's something that really annoys me. Well yes, वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने के लिए रिसेंटली रखा गया एक मैराथन, जिसे सपोर्ट करने पहुंची दीपिका पादुकोण। और यहाँ का डेस्टिनेशन थी एक वॉल ऑफ इरिटेशन। बस इसी बात पर हमने दीपिका से पूछ लिया कि अगर उन्हें मौका दिया जाए ये वॉल ऑफ इरिटेशन हटाने का, तो वो कौन सी एक चीज होगी जिसे वो करेंगी डिमोलिश। I think lies, it's something that really annoys me. I think I respect people who are honest. And I think everyone, I think honesty is the key to happiness. I think if you're honest, even if you've made a mistake, if you own up to it, I think life would just be so much more simpler. चलिए, दीपिका तो अपनी गलतियों के लिए ओन अप करती हैं, and this is quite evident from her past breakups as well. Anyways, यहाँ पर हमने दीपिका से ये भी जानना चाहा that what does she feel about women-oriented films in Bollywood industry. This is what Deepika had to say. I think all films today are heroine-oriented. I think women today in films generally have become very, very important to films, whether it's the roles or the importance that a heroine brings to a film. But yeah, if there's something specific that y'all would like me to do, I'd be more than happy to do that. Well, Dippy, हमारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? Tell this to your producers and directors. आप तो हमें ये बताइए कि आपकी लाइफ में कौन सी वो वुमेन रही हैं जो थी आपके लिए एक इंस्पिरेशन? I think ये बहुत ही क्लीशेड आंसर है, पर मेरी माँ मुझे बहुत इंस्पायर करती है. You know, she's been a career woman, but at the same time, my sister and I, जब हम स्कूल में थे, हमको कभी नहीं लगा कि that our mother's not around, because she knew how to manage her career as well as a family, and I think she's the ideal woman for me, and I'd love to have the life that she has. Well, आंसर तो काफी क्लीशे था दीपिका, but it was a nice one, so we'll give that one to you. And on that note, क्या आप आज की women को कुछ मैसेज नहीं देना चाहेंगी? I think the women of today are an inspiration for me. I don't think I need to tell the women of today anything really. I think they've come into their own. I think they've become really confident. They stand up for themselves, and you know, I think we're definitely on the right track. Well, दीपिका के अलावा यहाँ दिखाई दिए और भी बी-टाउन स्टार्स लाइक ट्यूलिप जोशी, महा अक्षय, तारा शर्मा, दीपानिता शर्मा, शहजान पदमसी भी। जहाँ इन सभी एक्टर्स के आने की वजह थी टू सपोर्ट वुमेनहुड, वहीं सुनिए महा अक्षय की वजह टू कम हियर. I think there are two reasons behind this. One is I think we have a very, very beautiful and amazing cause happening. आप जैसे देख रहे हैं कि I just asked one of the people over here. उन्होंने कहा कि more than 3,000 women have been participating for this event, which is a very, very big deal. And second, my movie is coming out very soon, so I got to be in the papers and start appearing and promoting my film. So there are two reasons here. Well, मीमो, आपका दूसरा रीजन हमें पता नहीं क्यों ज्यादा ऑनेस्ट लग रहा है, बट घबराइए मत। प्रमोशन की ग्रीड सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि तारा शर्मा को भी है, जिनके लिए हर एक इवेंट बन गया है अपने टीवी शो का प्रमोशनल ग्राउंड। यहाँ पर भी बातों बातों में तारा ने कुछ ऐसा ही किया, मगर बात खत्म करने से पहले ही भागना पड़ा उन्हें. Have a look. In this particular case, because it's the women's marathon, there's cervical cancer, there's children's education, there's children, women's safety, and you know, I have a TV show, the Tara Sharma Show, एक नई माँ का सफर, and in each episode now I'm going to try and have a social cause. I think we have to run now. जाइए तारा, किसी और इवेंट पर ये अधूरा प्रमोशन कंप्लीट कर लीजिएगा. फिलहाल इस इवेंट पर वुमेनहुड को सेलिब्रेट कर लेते हैं. साजिद पटेल, ज़ूम, मुंबई. कंगना रनौत को हमारे एक सवाल ने कर दिया है हैरान परेशान. ऐसा सवाल जिसका जवाब तो कंगना ने दिया, पर थोड़ा हिचकिचा के. क्या था वो सवाल? लेट्स फाइंड आउट.
आखिर कंगना की बोलती बंद क्यों है? ऐसा ही होता है जब हमारे स्टार्स को सवाल पूछे जाएं और उन्हें समझ न आए कि जवाब कैसे दिया जाए। हम आपको बताते हैं कि कंगना को जूम ने क्या सवाल पूछा, जिस पर कंगना का ये रिएक्शन था। हाल ही में अजय देवगन ने ये कन्फेस किया था हमें कि ही इज अशेम्ड दैट ही साइंड रास्कल्स, एंड संजय दत्त ने भी कहा था। तो आप भी यही मानती हैं कि व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? समझे नहीं? चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। थोड़े दिन पहले हमने अजय देवगन से पूछा था कि रास्कल्स जैसी फिल्म करने की उन्होंने सोची भी कैसे, और उनका रिएक्शन था कुछ ऐसा। I also got this reaction कि उसमें थोड़ी सी जो वल्गैरिटी थी, people didn't want to see me, and I've in fact उस फिल्म के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि कोई ऐसी फिल्म नहीं करूँगा जिसके अंदर वल्गैरिटी हो या जो बच्चे ना देख सके। तो I would try my best and do films which are whole family entertainers। तो अब आपने बैकग्राउंड जान लिया, अब आते हैं कंगना के इस रिएक्शन पर। हो सकता है कि कंगना को समझ ही नहीं आया हो कि हम बोल क्या रहे हैं। लगता है उन्होंने रास्कल्स 70mm में शायद देखी नहीं, इसीलिए तो वो बोल रही हैं that it's okay। हाल ही में अजय देवगन ने ये कन्फेस किया था हमें कि ही इज अशेम्ड दैट ही साइंड रास्कल्स, एंड संजय दत्त ने भी कहा था। तो आप भी यही मानती हैं कि व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? Yeah, they told us that कि उनको जो स्क्रिप्ट दिखाई गई थी it didn't match actually जो आउटकम था फिल्म का। तो हाल ही में उन्होंने आई थिंक एक हफ्ते पहले हमें बोली that's when you were a part of the film। तो well, I don't know what to say, just that it's okay, it's okay। उन्होंने कहा उसमें वल्गैरिटी ज़्यादा थी, तो इसलिए they were very ashamed कि फैमिली फिल्म नहीं थी और जो हमें बताया गया था वो नहीं था उस फिल्म में। It's okay, everything is going to be fine, guys, don't worry। वैसे कंगना, अगर आप रास्कल्स जैसी फिल्म को कहेंगी इट्स ओके, तो शायद आपकी फैन फॉलोइंग कम ना हो जाए। ध्यान रखिएगा और अजय से टिप्स ले लीजिए कैसे किया जाता है कन्फेशन। इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। सलमान के नोवेल डीड्स के चर्चे तो पूरे बॉलीवुड में मशहूर है, पर आज तक तो सलमान अननोन लोगों की मदद करते आए हैं। बट दिस टाइम इट्स हिज फ्रेंड युवराज सिंह हु सलमान हैज एक्सटेंडेड हिज हेल्प टू। Trust Salman to do certain things। हमने बहुत सारे सलमानिज्म्स देखे हैं, लेकिन ये तो बाउंसर निकला। हाल ही में सलमान ने एक एनर्जाइजिंग टैबलेट्स का एड शूट किया, लेकिन ये ऐसा वैसा एड नहीं था। ये ब्रांड पहले इंडोर्स कर रहे थे क्रिकेटर युवराज सिंह, लेकिन युवराज के हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से ब्रांड ने सलमान को अपना नया चेहरा चुना। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। सलमान खान ने ये एड शूट तो किया, लेकिन इससे कमाई हुई रकम उन्होंने युवराज के ट्रीटमेंट के लिए भेज दी। है ना चौंका देने वाली बात। सलमान खान को हमने अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए चैरिटी करते तो देखा है, लेकिन युवराज को तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। दरअसल सलमान को लगा कि क्योंकि ये ब्रांड यूवी का था और वो इस वक्त अमेरिका में अपना इलाज करवा रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें ट्रीटमेंट के लिए ये पैसे भेज दिए जाएं। मानना पड़ेगा सलमान हर बार कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें चौंका जाता है। इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। And now it's time to see Bollywood's recent picks। कौन सा स्टार आजकल कर रहा है क्या, और कौन है बिजी शूटिंग में, और कौन कर रहे हैं पार्टी। देखिए बी टाउन के लेटेस्ट पिक्स में। बॉलीवुड के गलियारों से छिपते छिपाते हम हाजिर हैं बॉलीवुड इन पिक्स के साथ। टू स्टार्ट विद वी गॉट सलमान विद रजत रोवेल ऑन द सेट्स ऑफ दबंग 2। सलमान इस पिक में दिख रहे हैं अपने पुराने चुलबुल अंदाज में। सलमान चाहे कितनी भी सिक्योरिटी रखें ऑन द सेट्स, पर उनके फैंस उन्हें कहीं न कहीं से ढूंढ ही लेते हैं। चलिए दबंग 2 के सेट से निकलकर बढ़ते हैं राउडी राठौर के सेट्स पर, जहां वी स्पॉटेड अकी इन हिज पुलिस अवतार। अक्षय's look is same as चुलबुल पांडे। तो वहीं सोनाक्षी स्पॉटेड विद किड्स। लगता है सोनाक्षी मॉमी का किरदार निभा रही हैं इस फिल्म में। ऑन द सेट्स ऑफ बोल बच्चन, अभिषेक, अजय देवगन और रोहित शेट्टी गॉट कैप्चर्ड इन अ कैंडिड मूड विद किड्स। करीना seems enjoying on the sets of Heroine with Madhur Bhandarkar. Here we get you Salman and Katrina from sets of Ek Tha Tiger while they were shooting in Dubai. मलिका शेरावत फिल्म्स को छोड़ पार्टी के मूड में ऑल सेट है, तभी तो उन्होंने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये पिक पोस्ट किया है, where she is partying hard with her friends on the beach. वेल बॉलीवुड इन पिक्स में आज के लिए बस इतना ही, पर बी टाउन की लेटेस्ट पिक्चर्स और हॉट गॉसिप्स के लिए स्टे ट्यून टू प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज एवरी डे एट 7 PM ओनली ऑन ज़ूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। तो समीना शेख, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर अपने आने वाली फिल्म ये जवानी है दीवानी में एक ऐसी हीरोइन के साथ पैर हो गए हैं जिनका रणबीर के साथ आना शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वेल, इट्स नॉट दीपिका एंड इट्स नॉट हिज सिस्टर करीना एज वेल। तो कौन है ये एक्ट्रेस, आप खुद देखिए हमारी अगली स्टोरी में।
लगता है रणबीर दीपिका के ऑफ स्क्रीन ही नहीं बल्कि उनकी ऑन स्क्रीन लव एंगल में भी ट्रायंगल बन जाता है। उनकी आने वाली धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म ये जवानी है दीवानी का हाल भी कुछ ऐसा ही है और इस प्यार की कहानी में ट्विस्ट ला रही है नो अदर देन काल्की। जी हाँ, काल्की बन रही है रणबीर दीपिका की ऑन स्क्रीन लव स्टोरी को खतरा। करण जौहर ने ये जवानी है दीवानी को अनोखा ट्विस्ट देने के लिए साइन कर लिया है काल्की को, जो रणबीर कपूर की भी प्रेमिका बनेगी। बचना ए हसीनों के बाद रणबीर दीपिका फिर एक साथ इस फिल्म में दिखाई देंगे। ये फिल्म और भी खास है क्योंकि 3 साल के ब्रेकअप के बाद ये पेयर फिर दोबारा साथ में काम करता दिखाई देगा। काल्की की एंट्री से तो यही पता चल रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं इस फिल्म को हिट बनाने के लिए। इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। Recently, Gauri Khan was spotted partying with SRK's biggest rival at a birthday bash. इस बात से शायद शाहरुख हो सकते हैं खफा। आखिर कौन है SRK का वो दुश्मन जिसके साथ गौरी was bonding a lot? Let's investigate in our next story. सलमान खान और शाहरुख के बीच क्या फिर हो सकता है पैचअप? और ये पैचअप कोई और नहीं बल्कि SRK's डियरेस्ट वाइफ गौरी खान करवा सकती हैं। आप भी हो गए ना सरप्राइज इस खबर को सुनकर? तो जानिए कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल खबरों की माने तो सलमान और गौरी खान साथ में स्पॉट किए गए थे एक बर्थडे बैश में। जी हाँ, सोहेल खान ने अपनी वाइफ सीमा खान के लिए रखी थी एक बर्थडे पार्टी, जहां पहुंची गौरी खान भी, as she is a good friend of सीमा खान। वहीं सलमान भी मौजूद थे। And according to the sources, when Gauri entered the party, Salman welcomed her warmly. Not only that, both of them had a long conversation as well. अब इन दोनों के बीच आखिर ऐसी क्या बात हुई, ये तो यही दोनों बेहतर जाने। पर इस खबर से शाहरुख जरूर हैरान हुए होंगे और शायद उन्हें ये बात हजम भी ना हो कि गौरी उनके इंडस्ट्री में सबसे बड़े राइवल के साथ पार्टी कर रही थी। वेल, SRK तो इन दिनों बिजी हैं कटरीना कैफ के साथ as he is shooting with her for यशराज फिल्म्स। और ये तो हम सभी जानते हैं कि कैट सलमान के कितने करीब है। जहाँ SRK is bonding well with सलमान्स एक्स कटरीना, तो वहीं सलमान मुंबई में गौरी खान को दे रहे हैं एक हॉस्पिटेबल ट्रीटमेंट। वेल, दिस सीम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलिए, SRK से तो आपकी बातचीत नहीं है सलमान, पर उनकी वाइफ से बातचीत शुरू कर देना ही बड़ी बात है। और समीना शेख, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किसने उड़ाई रणबीर की नींद। विद्या बालन भले ही आजकल सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही हो, पर उनकी इस उभरती सक्सेस के पीछे है प्रियंका का हाथ। या यू गॉट इट राइट। प्रियंका से कैसे हुई विद्या इंस्पायर्ड, जानिए हमारी अगली स्टोरी में। विद्या की फिल्म के लिए प्रियंका बनी केस स्टडी। फिल्म डर्टी पिक्चर को काफी तारीफें तो मिल गईं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि डर्टी पिक्चर का पूरा मॉडल बेस था प्रियंका की फैशन के बलबूते पर ही। सोर्सेस की माने तो मधुर के इस फिल्म के प्लॉट से लेकर टू कलेक्शंस तक हर किसी पहलू पर डर्टी पिक्चर के मेकर्स ने की थी डिटेल रिसर्च। क्योंकि विद्या की डर्टी पिक्चर वाज बेस्ड ऑन द क्लोज लाइंस ऑफ फैशन एंड प्रियंका's कैरेक्टर, इस फिल्म से डर्टी पिक्चर का कोई मेल ना हो, ये ध्यान में रखा गया। इतना ही नहीं, सुनने में ये भी आया है फैशन कितने प्रिंट्स में रिलीज हुई, कितने बजट में बनाई गई और कितनी कमाई की। इन आंकड़ों को ध्यान में रखकर ही डर्टी पिक्चर के एस्टिमेटेड प्रॉफिट तक को तय किया गया था। एंड इनसाइडर्स के मुताबिक प्रियंका's फैशन वाज अ बिग हेल्प इन मेकिंग डर्टी पिक्चर अ हिट। और कोइंसिडेंटली दोनों फिल्मों की लीड प्रियंका और विद्या को अपने अपने रोल्स के लिए नेशनल अवार्ड्स के लिए चुना गया। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। किस बात से आजकल रणबीर है इतने परेशान कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है? किस वजह से RK is having sleepless nights? Let's investigate. रणबीर की रातों की नींद उड़ गई है, लेकिन इसके लिए कोई हसीना जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है उनका काम। इन दिनों कपूर जूनियर बड़ी शिद्दत से शूटिंग कर रहे हैं। रणबीर कर रहे हैं फिल्म बर्फी की शूटिंग और उनके सारे शूट्स रात में ही हो रहे हैं। मुंबई के एक सबर्बन स्टूडियो में अपनी फिल्म के लिए कई रातें काट रहे हैं रणबीर कपूर। और सुनने में आया है कि यही वजह है जिसके कारण स्लीप डिप्राइव्ड हो गए हैं रणबीर कपूर। और इतना ही नहीं, अक्सर नाइट लाइफ और पार्टीज को एंजॉय करने वाले रणबीर अब इन पार्टीज से भी दूर हो गए हैं। रणबीर की नाइट लाइफ पर मानो फुल स्टॉप लग गया है। रणबीर की आंखों में पार्टीज के ख्वाब तो हैं, पर पलकें नहीं झपकती। रणबीर अपना सारा फोकस लेट नाइट तक चल रहे इन शूट्स पर लगा रहे हैं और मुंह से उफ तक नहीं करते। हमें लगता है रणबीर अब कमिटेड हो चुके हैं, अपने काम के लिए ही सही। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। सो स्टे विद अस।
काफी सालों के बाद हम देखेंगे फिल्म आंखें का सीक्वल और इस फिल्म के लिए हो गए हैं बिग बी फाइनलाइज्ड। अमिताभ बच्चन फिर दिखेंगे एक शातिर किरदार में, बिग बी फिर कर सकते हैं बैंक रॉबरी और ये सब बिग बी कर सकते हैं आंखें के सीक्वल में। जी हाँ, 2002 की इस फिल्म का फाइनली आ रहा है सीक्वल और इस न्यूज का कॉन्फर्मेशन दिया है फिल्म के प्रोड्यूसर गौरांग दोषी ने टू अ लीडिंग मुंबई न्यूज़पेपर। We have been working on the sequel for a while. We are on the verge of finalizing things and would make an announcement soon. इस फिल्म के सीक्वल में बाकी सब एक्टर्स वी मीन सुष्मिता सेन, अर्जुन रामपाल, अक्षय कुमार और परेश रावल दिखेंगे या नहीं, ये तो खैर अभी तक लीक नहीं हुआ है। But according to the sources from the old cast, only Big B is finalized as of now. Big B had also done दीवार with this producer, जिसका बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था और इन फिल्म्स के बाद the producer got tangled in some of his legal controversies, जिसकी वजह से he shelved the plan of making the sequel to आंखें. But it seems everything is sorted now. इसलिए तो उन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है कि आखिरकार उनकी लॉन्ग अवेटेड फिल्म का बनने जा रहा है सीक्वल। पर अब तक ये रिवील नहीं हो पाया है कि बिग बी इस फिल्म में क्या रोल प्ले करते नजर आएंगे। Will he be seen in a villainous role or something else is yet to be decided. हम आपको बता दें इस फिल्म की शूटिंग की जाएगी इंडिया, कनाडा और इंग्लैंड में भी और ये फिल्म रिलीज होगी नेक्स्ट ईयर। चलिए हम भी देखते हैं कि बिग बी इस फिल्म में क्या कमाल दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.